Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson Birbal and the Cooking Pot. This is a play based on the story of Raja Birbal, the wittiest courtier and friend of Emperor Akbar. जो बीरबल हैं वो कौन थे? अकबर के जो हैं बहुत विटिएस्ट कोर्टियर और फ्रेंड भी थे. तो ये स्टोरी उन्हीं की स्टोरी पर बेस्ड है. नाउ रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर. कैरेक्टर्स: अकबर ड्रमर, बीरबल मैसेंजर, कोर्टियर्स चाइल्ड, वॉशरमैन पीपल. तो ये जो स्टोरी है बीरबल एंड कुकिंग पॉट, इसमें अकबर ड्रमर है, बीरबल मैसेंजर, कोर्टियर्स चाइल्ड, वॉशरमैन पीपल. Now washerman's wife. Scene 1. It is morning and the view is of a palace balcony overlooking a river. Akbar and Birbal are standing on the balcony. जो सीन 1 है, मॉर्निंग का टाइम पीरियड है और अकबर और बीरबल बालकनी में खड़े हैं, जिसका फेस किस तरफ को है? रिवर की साइड को है. नाउ अकबर: बीरबल, I have heard that the water in the river is very cold. Is it true? Birbal: Yes, Jahanpana. Akbar: If a man stood in this water for one whole night, would he die? Birbal: Certainly, Jahanpana. No ordinary person could survive this cold water. अब बीरबल और अकबर में दोनों में बात हो रही है. तो दोनों जब बालकनी में खड़े हैं, फेस कहाँ है उनका? रिवर की साइड में. तो अकबर ने पूछा कि बीरबल, मैंने सुना है कि ये जो पानी है नदी का बहुत ठंडा है, क्या ये बात सही है? बीरबल ने कहा यस. अकबर ने कहा कि अगर पूरी रात इसमें कोई खड़ा होगा तो क्या वो मर जाएगा? बीरबल ने कहा सर्टेनली, ऑर्डिनरी पर्सन इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता. So the discussion was going on between Akbar and Birbal. On asking question, Akbar found that the water of the river was very cold. He asked Birbal a question that if a man stood in the water, would he survive or die? Birbal replied that certainly he would die, as no ordinary person can survive the cold water. Akbar thoughtfully stroking his chin. Well, here is my chance to test the strength of the common man in the kingdom. Birbal listened. The emperor whispers something into Birbal's ear. Birbal shows surprise, then nods. Whisper करना, स्पीक इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज़ में कुछ बोलना. फिर उसने, अकबर ने जो है सोचा और उसके बाद कहा कि यहाँ जो है मैं एक कॉमन मैन की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का मैं जो है एक चांस लूँगा. एक चांस मेरे पास है कि मैं उसका टेस्ट करूँ. फिर बीरबल को वो कुछ उसके कान में कुछ खुसफुसाते हैं, धीमी आवाज़ में कुछ बोलते हैं वो, और बीरबल जो है उस पर सरप्राइज भी शो करता है और फिर उनकी बात को जो है वो स्वीकार भी करता है. नॉट, अपने सिर को ऊपर नीचे हिला के एग्रीमेंट में वो नॉट भी करता है. Scene 2. In the afternoon, in a busy part of the town, a drummer beats his drum loudly and people gather around him. Gather होना, collect होना, इकट्ठा होना. अब scene 2 में क्या हुआ? आफ्टरनून में जो ड्रमर था उसने लाउडली अपने ड्रम को बीट किया. He beats the drum loudly and all the people gathered around him. Now drummer loudly, जोर से. Loudly means जोर से. क्या कहा उसने? Listen, listen. Emperor Akbar has announced a reward. Reward, इनाम, prize. Anyone who can stand for one night in the river near the palace will be richly rewarded. On the pavements, people stop and talk excitedly. Impossible. Impossible means असंभव, जो possible हो ही नहीं सकता, जिस काम को कोई कर ही नहीं सकता. Who will do it? Shall we try?
too risky. A poor washerman whispers to his wife. अब ड्रम बीट करके क्या कहा उन्होंने कि सब ध्यान से सुनो. जो एम्परर अकबर हैं उन्होंने क्या कहा है कि अगर जो पूरी रात इस नदी के पानी में खड़ा रहेगा उसको पैलेस में रिच अवार्ड दिया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा. अ पर्सन who would stand for one night in the river near the palace will be richly rewarded. He would be given reward if he would stand in the river water. Now on the pavement, people started talking about that. They were not sure. They were showing their excitement. They were showing their surprise that that work is impossible and no one can do. They tried, but they found that too much risky. So the poor washerman whispered into his wife's ears. Now washerman, this is a good chance. If I get this reward, we can live well. अगर हमें ये अवार्ड मिल जाए तो क्या होगा, हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है. वॉशरमैन ने अपनी वाइफ से कहा. नाउ वॉशरमैन आस्क्ड टू हिज wife, he whispered something in his wife's ears that would be a good chance if they would get reward. So he was trying to do that. Now wife, no, I don't want that. You will fall ill. अब वाइफ को डर था कि अगर उसमें जाएंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे. Washerman, don't worry, nothing will happen to me. I wash clothes in the cold water of the river every day. Now the washerman consoled his wife by saying that nothing would bad happen to him. He was used to wash clothes in the cold water. So every day he was doing that work. So he was sure that he would be able to do that. Now scene 3. It is night and the washerman is standing in the river. The reflection of lights from the palace can be seen in the water. Reflection means प्रतिबिंब, उसकी छाया. Now the reflection of the lights from the palace can be seen in the water. Some people come and look at him, shake their heads and go away. अब क्या हुआ, लोग आ रहे थे, देख रहे थे, अपना सिर हिला के फिर चले जा रहे थे. जो लाइट्स का रिफ्लेक्शन था पैलेस से वो पानी में आ रहा था. Some people say one man, poor man, he will die before the night is out. Second man, what a foolish thing to do. Well, let us pray for him. अब वो आपस में बातें कर रहे थे कि ये जो काम कर रहा है ये फुलिश है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भगवान से इसके लिए प्रे करते हैं. Now they were praying for his wellness. They are praying to God to keep him in good health. Scene 4. The next morning, the washerman, alive and well, walks out of the river. People shouting and clapping with joy. Thank God he is fine. Lucky man to get the reward. अब अगली सुबह जब वॉशरमैन वहाँ से अलाइव होना मतलब जिंदा होना, वो ठीक था, तो नदी से बाहर आता है. जब लोग उसको देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्लैपिंग करते हैं, चिल्लाते हैं और भगवान को थैंक्स पे करते हैं कि ये फाइनली जो है इसको अब रिवॉर्ड मिलेगा, ये लकी मैन है. नाउ वाइफ ग्रीटिंग हर हस्बैंड विद रिलीफ. ग्रीट करना, वेलकम करना. अपने हस्बैंड को ग्रीफ जो है वो बहुत रिलीफ होकर के ग्रीट कर रही थी, उनका वेलकम कर रही थी. ओह, आई वॉज सो वरीड अबाउट यू. मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थी. चाइल्ड, फादर, यू आर सो ब्रेव. विल द एम्परर रिवॉर्ड यू नाउ? वॉशरमैन, येस ऑफ कोर्स. डिडंट आई पास द टेस्ट? अब बच्चे ने जब पूछा कि आप बहुत ब्रेव हैं, क्या आपको अब रिवॉर्ड देंगे, एम्परर आपको देंगे इनाम? तो वॉशरमैन ने क्या कहा? येस ऑफ कोर्स. आफ्टर ऑल ही हैड पास द टेस्ट. नाउ सीन 5. At the court, Emperor Akbar is seated on his throne and Birbal is standing. Scene 5 में क्या दिखाया जा रहा है कि जो अकबर हैं वो अपनी थ्रोन में बैठे हुए हैं. थ्रोन मीन्स अपने शासन में बैठे हुए हैं और बीरबल उनके बगल में खड़े हैं. Near him, there are courtiers and guards present.
The washerman enters with his family and bows before Akbar. अब वॉशरमैन अपनी फैमिली के साथ आता है और अकबर के सामने जो है क्या करता है, उनको ग्रीट करता है, उनके सामने सम्मान में सिर झुकाता है. He bows before Akbar in honor. Now there were courtiers and guards in the court. Now washerman enters. Akbar, we are very happy with you, young man. You have proved your strength. Come, take your reward. A man enters with a silver tray full of gold coins. As Akbar is about to give the coins to the washerman, a courtier, sorry to interrupt you. जहाँ पर ना interrupt करना means रोकना. वो जैसे ही वहाँ अंदर एंटर करता है तो उसके हाथ में क्या थी, एक ट्रे थी सिल्वर की जिसमें गोल्ड कॉइन्स थे. अब जैसे ही अकबर उनको देने वाले होते हैं तो कोर्टियर उनको कहते हैं कि सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया. तो इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, आपको आपके काम में रुकावट कर दी. जहाँ पर ना दिस मैन डजंट डिजर्व द रिवॉर्ड फॉर द वाटर वॉज नॉट रियली कोल्ड. यू सी द लाइट्स फ्रॉम योर पैलेस मेड इट वार्म. कि ये इनाम देने के लिए सही नहीं है, ये डिजर्व नहीं करता कि इसको ये इनाम मिले. क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पैलेस से लाइट जा रही थी उसकी वजह से पानी कैसा हो रहा था, गर्म, और उसमें ये खड़ा था. नाउ ही स्टॉप्ड अकबर बाय गिविंग हिम रिवॉर्ड एज ही टोल्ड हिम दैट द लाइट फ्रॉम द पैलेस was making the cold water warm, and that's why he was able to stand there. So he doesn't deserve the reward. Akbar thoughtfully means बहुत सोच विचार करते हुए, you do have a point. Well, if that is so, then there is no question of a reward. अब वो क्या कहता है अकबर उसको कि अगर ये बात सही है तो फिर तो इनाम का सवाल ही नहीं होता. The washerman walks away sadly with his family. The jealous courtier smiles wickedly. Jealous means जो उससे jealous फील कर रहे थे, जलन फील कर रहे थे, चिढ़ रहे थे उससे. courtiers jealous करना, जलन करना. तो वो उसके ऊपर wickedly जो है स्माइल कर रहे थे, दुष्टता से उसके ऊपर वो स्माइल कर रहे थे. बीरबल looks very upset and angry. Now the washerman उदास हो गया था बेचारा. क्यों? क्योंकि जो धूर्त कोर्टियर्स थे उनकी जलन के कारण उसको इनाम नहीं मिला. बीरबल भी बहुत अपसेट था और एंग्री था. Now the washerman was very sad as he didn't get any reward, and the wicked courtiers were laughing at him. They were jealous of him. Birbal was also very upset and angry. Now the scene 6. The next day at Akbar's court, Birbal's seat is empty. Empty means खाली होना. अकबर के कोर्ट में बीरबल की सीट जो है खाली थी. अकबर, this is the first time Birbal is late for the court. Messenger, go and find out the reason for his absence. The messenger bows and got away. He returns in a while. अब अकबर ने जब देखा सीट खाली है बीरबल की तो मैसेंजर से कहा कि ये पहली बार हुआ है, जाओ उसकी एब्सेंस का कारण पता करके लाओ. मैसेंजर चला जाता है. नाउ द अकबर sends his messenger to find out the reason of Birbal's absence. He returns in a while. Messenger, Jahanpana, the minister is in his house. He says he is cooking food and it will take him a long time to do so. Akbar, angrily, I won't believe this. How can food take him a long time to do so, long to cook? I shall go and see for myself. The emperor gets up and walks out of the court. अब क्या हुआ, जब मैसेंजर वहाँ गया तो वहाँ देख करके आया. उसने कहा कि मिनिस्टर जो है अपने घर में है और वो खाना बना रहा है और वो कह रहा है कि उसको लंबा टाइम लगेगा. अब अकबर को गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कुक को जो है इतना लंबा टाइम खाना बनाने में कैसे लग सकता है. मैं अपने आप जाऊँगा और देख के आऊँगा. Now the Akbar wanted to find out the reason by himself. It was unbelievable for him. The emperor gets up and walks out of the court, followed by a
few courtiers and guards. अब अकबर जब गए तो उनके साथ कौन कौन गया? कुछ courtiers और guards भी गए. Now scene 7. Birbal is sitting on the ground near a fire. Far above it, on a branch of a tree, is a cooking pot. As the emperor approaches, Birbal rises and bows to him. Approach करना means पहुंचना. सीन 7 में क्या हुआ? अब बीरबल जो है ग्राउंड में बैठे हुए हैं, फायर के पास हैं, और ब्रांच में क्या हो रहा है? उनका एक पॉट है जिसमें खाना बन रहा है. अब जब एम्परर वहाँ पहुँचते हैं तो बीरबल उनका वेलकम करते हैं झुक करके. अकबर, बीरबल, what a foolish thing to do. How can this fire warm your cooking pot? Birbal, with a twinkle in his eye, in the same way, Jahanpana, as the lights from your palace made the water of the river warm. Akbar laughs as he understands what Birbal is trying to say. अब जब आए, लंबा टाइम क्यों लग रहा था? क्योंकि नीचे आग जल रही थी और ऊपर ब्रांच में पॉट था जिसमें खाना बन रहा था. तो जब अकबर ने ये देखा तो उसने कहा ये क्या मूर्खता वाली बात है? नीचे जो आग जल रही है वो ऊपर पॉट को गर्म कैसे करेगी? हाउ कुड इट बी पॉसिबल? बीरबल ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में थोड़ा सा चमक आई, और चमकती हुई आंखों से उसने क्या कहा कि सेम उसी तरह से जैसे आपके पैलेस की लाइट रिवर के वाटर को वार्म कर रही थी, इसी तरह से. अब अकबर को बात समझ में आ गई कि बीरबल क्या कहना चाह रहा है. तो अकबर को हंसी आ गई. नाउ अकबर गॉट टू नो व्हाट द बीरबल वाज ट्राइंग टू से. ही स्टार्टेड लाफिंग. Scene 8. The next day, the washerman and his family are present at Akbar's court. Akbar asks Birbal to hand over a tray of gold coins to the washerman. The courtiers cheer and clap. The washerman smiles and bows in gratitude. Scene 8 में क्या हुआ? जो वॉशरमैन था और उसकी फैमिली वाले अकबर के कोर्ट में आए. अकबर ने बीरबल को जो है जो गोल्ड की ट्रे थी उसको वॉशरमैन को देने के लिए कहा, और सारे जितने भी कोर्टियर्स थे उन्होंने जो है उसका चीयर अप किया और क्लैपिंग करी. अब वॉशरमैन जो था वो उसने क्या करा? उसने राजा को जो है ग्रेटिट्यूड पे करा और उनके सामने अपना सिर झुका दिया. झुक करके राजा को ग्रेटिट्यूड पे किया. तो इस तरह से जो है फाइनली जो इनाम था वो वॉशरमैन को मिल गया. नाउ द नेक्स्ट डे the washerman with his family was called in the palace and then given the award of gold coins. He was very happy at that moment. The courtiers welcomed him, they cheered him, and then the washerman also bowed in gratitude. So this was the story. तो देखा बच्चों आपने, बीरबल ने कितनी चतुराई से राजा को ये बता दिया कि जो उसको बताया गया था कोर्ट में कि उसके महल की वजह से जो है महल की लाइट की वजह से रिवर का पानी गर्म हुआ, तो उसने कितने अच्छे ढंग से राजा को ये समझा दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. तो अपनी बुद्धि का यूज़ करके हम जो हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आती है हम उसको पार कर सकते हैं, है ना. कैसी भी परिस्थिति आएगी हम जीत सकते हैं. तो हमें इस्तेमाल क्या करना है? बुद्धि का. अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं, तो हमारा जो पॉइंट है उसको हर कोई सुनेगा और समझेगा, है ना. आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.